continue our discussion on multiple choice questions, and we were doing chapter 10 circles of class 9th, and questions are taken from the book R.S. Agrawal. So let's start question number 16. In this question, this diagram is given and these are two triangles, okay, in the circle, such that angle BAC at point A, this angle is 60 degree, and DBC is 50 degree. DBC, only this part, only this portion is 50 degree, and we have to calculate BCD. ये angle हमें find out करना है. So students, you can note down. Students, you can notice this thing clearly here. यहाँ पे BC arc BC ये दोनों points से A point पे join होके 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, and the same arc BC यही दोनों end points यहाँ पे D point पे join हो रहे हैं, ठीक है. So angle A and angle D और A क्या बना रहे हैं? Angle in the same segment. So angle D भी कितना होना चाहिए? 60 degree. And now you are smart enough. In triangle BCD, we can use angle sum property. Okay, one angle is 50, one angle is 60, है ना? तो इनका टोटल कितना होता है? 110. So angle C will be 180 minus 110. Directly we can give answer. Angle sum property, sum of three angles is 180. So 180 में से ये दोनों का sum 110 minus कर देते हैं. So we can get the correct answer 70 degree. So option C is the correct option. Let's understand question number 17. In this question, BOC is diameter. So again I will emphasize, question में जो भी दिया हुआ है कुछ भी wastage नहीं होता, everything will be useful, है ना. So BOC diameter है तो कहीं ना कहीं diameter की कुछ properties का use होगा. Of a circle with center O, if angle BCA is 30 degree, BCA, this is 30 degree, okay, and we have to calculate CDA जो कि यहाँ पे नीचे कहीं बन रहा है. I will draw this angle afterwards. मैंने सिर्फ अभी यहाँ पे diameter is 30 degree और यही triangle बनाया है, just to explain, just to show कि ये diameter है. So this upper portion, this upper arc, ये कैसा हुआ? सेमी सर्कल, हाफ सर्कल, है ना. डायमीटर से डिवाइड हो रहा है, तो डायमीटर से ऊपर हाफ सर्कल और डायमीटर के नीचे हाफ सर्कल, सेमी सर्कल विच यू से. सो प्रॉपर्टी ऑफ डायमीटर, सेमी सर्कल में जब भी एंगल बनेगा डायमीटर के एंड पॉइंट्स से, डायमीटर के एंड पॉइंट्स जब भी हम बाउंड्री पे ज्वाइन करेंगे तो एंगल जो बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री, ठीक है. तो एंगल ए हमारे पास 90 डिग्री आ गया. सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल easily we can calculate angle B. Angle sum property, 90 and 30, it's 120. So 180 minus 120, ये एंगल आ जाता है हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है. सो एंगल B is 60 डिग्री. सो स्टूडेंट्स, नाउ नोट करने की चीज ये है, we have to calculate angle CDA. ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है. So we can observe that इस सर्कल का ये आर्क AC, this arc AC and these end points A and C, यही end points, same end points यहाँ B पे join हो रहे हैं and same end points A और C से D point पे एक एंगल बन रहा है. So what can we say about angle B and D? These are angles in the same segment. आपको सिर्फ वो end points pick up कर लेने हैं, end points AC. End points AC यहाँ B पे join हो रहे हैं and same end point से line यहाँ D पे आ रही है, ठीक है. It means these are the angles subtended by the same arc. These are angles in the same segment. एक ही segment वाले एंगल हैं, दोनों एंगल इक्वल हो गए. B हमने अभी 60 डिग्री निकाला था, तो एंगल D भी हमारे पास 60 डिग्री हो जाता है. ओके, सो विच ऑप्शन? यस, आफ्टर दैट ऑप्शंस टिक करना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. C option is the correct option.
Let's see question number 18. 18th question. In this given figure, O is the center of the circle and angle OAC 50 degree. OAC 50 degree. Then we have to calculate ODB. ODB. ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. Student, as O is the center of the circle, so these two line segments AOB, COD, ये हमारे पास हो जाते हैं डायमीटर्स. ठीक है. सो नाउ डायरेक्टली यू कैन ऑब्जर्व दैट आर्क CB आर्क, C एंड B आर एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क और CB आर्क यहाँ A पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा है एंड फ्रॉम दिस सेम आर्क CB these end points are going to be joined here at D. Students, you can observe that arc CB, यही CB arc से lines जो हैं A point पे join हो रही हैं and from the same arc, यही arc से जो lines हैं वो हमारे D point पे join हो रही हैं. ठीक है. CB arc से D point पे join हो रही हैं. So angle D and angle A, these are the angles in the same segment. It's quite clear. So एंगल डी जो हमें फाइंड करना है वो भी 50 डिग्री का हो जाएगा. ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द 19th क्वेश्चन. इन दिस गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल OBA. दिस स्मॉलर एंगल, ये छोटा एंगल जो है दिस इज 20 डिग्री एंड OCA दिस वन इज 30 डिग्री. So if you move to the proof of the theorem, angle subtended at the center is twice then the angle in the remaining circle. तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रूफ आपको इजीली समझ आ जाएगा. सो हेयर यू कैन ऑब्जर्व दैट OB इज इक्वल्स टू OA. दोनों रेडियस हैं, दोनों ही रेडियाई हैं. सो व्हाट कैन वी से अबाउट दिस एंगल? अगर हम उस एंगल को नाम देते हैं एंगल 1, तो दैट एंगल 1 विल ऑल्सो बी 20 डिग्री, है ना. आइसोसेलेस ट्राइंगल का सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है. दिस एंगल 20, सो दिस एंगल 1, अगर हम इसको एंगल 1 बोलते हैं तो वो भी कितना हो जाएगा 20 डिग्री. ठीक. इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं OA एंड OC, ये दोनों भी रेडियस हैं. दिस वन इज 20 एंड दिस वन इज गिवन 30 डिग्री. सो हेयर ऑल्सो OC इज इक्वल्स टू OA, सो एंगल 2 that will be equal to 30 degree. So what about complete angle BAC? पूरा whole angle BAC कितना हो जाएगा? That is 1 plus 2, 20 plus 30, 50 डिग्री हो जाएगा. A पॉइंट पे जो पूरा एंगल है वो हो जाएगा 50 डिग्री. And we have to calculate BOC. We know the angle subtended at the center is twice an angle in the remaining circle. और यहाँ पे arc observe कीजिए कौन से आर्क से बन रहा है? आर्क BC. आर्क BC से बाउंड्री पे जो एंगल बन रहा है दैट इज वी हैव कैलकुलेटेड 50 डिग्री. B और C ये पॉइंट्स आपको ऑब्जर्व करने हैं. BC पॉइंट बाउंड्री पे ज्वाइन कर रहे हैं, 50 डिग्री एंगल आता है. सेंटर पे ज्वाइन करेंगे तो एंगल जो आएगा दैट विल बी ट्वाइस एंगल BAC. 50 का डबल हो जाएगा 100 और ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है? सी ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. इट सीम्स टू बी क्वाइट इजी. लेट्स सी. O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस एंगल 100 and 90. ये 100 और 90 गिवन है. वी हैव टू कैलकुलेट एंगल एट द पॉइंट A. A पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है मीन्स एंगल सबटेंडेड ऑन द बाउंड्री, है ना. सर्कल पे कितना एंगल बन रहा है? सो फॉर दिस वी हैव टू कैलकुलेट दिस आर्क BC. ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? स्टूडेंट्स, वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटिस, आर्क का जो शेप है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो शेप और जो बाउंड्री पे एंगल बन रहा है, तीनों शेप एक जैसी होनी चाहिए. माइट बी लिटिल बिट कंफ्यूजिंग कि सेंटर पे तो 190 भी बन रहा है ना. बट ऑब्जर्व द डायरेक्शन. 190 का डायरेक्शन ऑब्जर्व कीजिए और एंगल A का डायरेक्शन ऑब्जर्व कीजिए. ठीक है. ऑल मस्ट बी सेम. आर्क इन दिस वे, एंगल एट द सेंटर अगेन इन दिस वे. C का शेप देखें, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर C होता है, ये C का शेप हो गया. सो हेयर ऑल्सो द सेम शेप C एंड हेयर ऑल्सो द सेम शेप. वही
फॉर्मेशन होना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई दिस थ्योरम, है ना। डोंट गेट कंफ्यूज के सेंटर पे 190 है, बाउंड्री पे हाफ हो जाएगा, नो। सेंटर पे एंगल BOC आप कैलकुलेट करेंगे पहले। कंप्लीट एंगल कितना होता है? कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। So if we subtract 190 from 360 degree, we will get this angle BOC. So it will be 270 degree. So angle BOC we are getting here 170 degree. Okay. Now angle in the remaining segment, angle A, it should be half the angle subtended by the arc at the center. That is 85 degree. So first option is the correct option. So students, बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात, as I explain, आर्क का जो शेप है, जो एंगल एट द सेंटर का शेप है, एंड एंगल इन द रिमेनिंग सर्कल, ये तीनों शेप एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। देन यू विल अप्लाई एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल इन द रिमेनिंग सेगमेंट, ठीक है। सो बच्चों, ये बात ध्यान रखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी।